Good evening, everyone. Welcome to today's Healing Circle Talks. Very glad to see all of you here. बहुत अच्छा लग रहा है सबको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे देख के. And it is a pleasure to host it every Sunday. And before we begin, I will go through the guidelines of the Healing Circle. Just a minute. Yeah. Healing circles are safe havens. They are built on the foundation of kindness and respect. We all participants agree to listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories shared in the circle within us, and we trust each one of us has guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. So with this, we begin our today's Healing Circle Talks. And we have a very wonderful, beautiful, inspiring, motivational person with us. It's our pleasure to host this circle with Anuradha ji. And she says that cancer changes you and the change can be beautiful. So we find positive strength. And what we really need in this journey is hope in this through this experience. So in late 2008, Anuradha ji was diagnosed with breast cancer, and during her 8 months of this treatment, she got in touch with Dr. Anupama Negi, founder of Sangini, where we are going to talk in detail about the wonderful work which Sangini is doing. It's a breast cancer rehabilitation center who helped her through her difficult time. Once she finished her treatment, she decided to become a member of Sangini and learned how to work her way through the network of doctors to reach out to more and more patients and support them. When Dr. Negi passed away in 2011, she took the responsibilities and became the coordinator of Sangini. She has received various awards for her brilliant work in the last 9 years, and she was diagnosed with cancer in her spinal cord last year, but it has not shaken her motive to help and serve women in society. She continues with her work as she takes treatment for this afflicting disease. So it's our pleasure to have you on this platform with us, Anuradha ji. I will request you to unmute yourself. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. And Anuradha ji, first of all, deep gratitude to all the wonderful work which you have been doing for cancer patients and everyone else. So मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना जर्नी, आपका जब पहला डायग्नोसिस हुआ था वहां से कैसे आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ है, कि आपका खुद का कैंसर का जर्नी था, आप उससे रिकवर हुए एंड आपने इसको एक मोटिवेशन बनाया इस पूरी जर्नी को to help many others who are going through this journey, and thousands of lives you must have touched. So can you please share your experience? Yeah, sure. Thank you. Thanks, Dimple, for inviting me. बहुत अच्छा लग रहा है सभी वॉरियर्स से मिलके. वैसे हम संगीनी में अपने आप को एड्रेस करते हैं एज विजेता अनुराधा सक्सेना. So I am Vijeta Anuradha Saxena, addressing you all the Vijetas in the group actually. Starting with my journey in 2008 November, मेरे को कैंसर डायग्नोज हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था. वन फाइन मॉर्निंग मैं जब उठी, व्हेन आई गॉट अप, तो आई हैड 2 drop of stains of blood on my gown, so I was a bit worried. I went to the gynae, then she asked कि आप mammography और FNSC दोनों कराइए. Or when the report came, it was positive, and that day was my birthday. On 12th November itself, I got diagnosed with the breast cancer in 2008. But then too, as my aunt, मतलब मेरी चाची को 2 साल पहले ही हुआ था ये breast cancer, so I was so very positive कि सब चीज अच्छी हो जाती हैं, और she was also going well. तो मैंने सोचा कि मैं भी ठीक हो जाऊंगी. पहली बार आप सुनते हैं तब दुख बहुत होता है, और ऐसे आपको लगने लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ. बट ठीक है, हिम्मत रखनी पड़ती है और आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है. तो फिर मेरे डायग्नोसिस के बाद ये हुआ कि मेरी चाची का जिन डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया था वो डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली चले गए थे. तो नेक्स्ट डे की ट्रेन पकड़ के, पहले तो मेरे फ्रेंड्स और मैं अपनी फैमिली के लिए बोलना चाहूँगी, मेरी बहुत अच्छी फैमिली है. आई हैव अ जॉइंट फैमिली. मेरे पेरेंट्स भी इंदौर में हैं, मेरी सिस्टर्स वगैरह, मेरे फ्रेंड्स, देयर आर सो मैनी सपोर्ट सिस्टम टू मी.
तो सब ने आके मेरा उसी रात को बर्थडे मनाया और मुझे बिल्कुल नेगेटिव होने नहीं दिया। एंड देन 13th को मैं दिल्ली चली गई थी। फिर वहां जाके मैंने इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवाए। बट देन ये हुआ कि ऑपरेशन अगर कराना है, क्योंकि वो मस्ट ही है, तो मैं अपने होम टाउन जाके ही कराऊं, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव में आपको केयर अपने घर में ही ज़्यादा बेटर मिलती है। तो फिर हम लोग वापस इंदौर आ गए ऑन 21st, और 22 नवंबर को मेरी मेस्टेक्टोमी हुई। तो तब डायग्नोसिस हुआ, तो मैं स्टेज 3B कैंसर पेशेंट थी। बट मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि मेरे को जुलाई ऑनवर्ड्स ऐसा होता था कि मेरे पीरियड्स जब आते थे मेरे ब्रेस्ट हैवी हो जाते थे, और मैं सोचती थी कि ये हार्मोनल चेंज है, तो मैंने निग्लेक्ट किया। और एक बार मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी जुलाई में, तो शी सेड कि एक मेमोग्राफी करा लो, 42 ईयर्स की हो रही हो। बट आई थॉट कि अरे कुछ तकलीफ तो है नहीं, एंड आई निग्लेक्टेड। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ कि मैंने वो करा कि उन्होंने कहा था मेमोग्राफी करा लो और मैंने कराई नहीं। बट देन इन नवंबर दिस हैपेंड, सो आई वाज सो गॉट गेट देयर। और फिर जाके मैंने अपना डॉक्टर को दिखाया, तो शी सजेस्टेड मेमोग्राफी और एफएनएसी। तो पहली बात मैं सबसे यही सोचती हूँ कि मैंने जो नेग्लिजेंस कर दी वो कोई भी ना करे, ऐसा। फिर जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो 22 नवंबर मेरे को मेस्टेक्टोमी हो गई। उसके बाद फॉलोड बाय 6 साइकिल्स ऑफ कीमो एंड 5 वीक्स ऑफ रेडिएशन। तो जब आपको डायग्नोज होती है डिजीज, उसके बाद भी आप, मतलब मैं होपफुल थी कि अरे मेरा जो सैंपल इन्वेस्टिगेशन के लिए गया उसमें शायद कैंसर नहीं आएगा, ये कुछ कुछ तो भी ऐसा हो रहा है। बट जब रिपोर्ट आई और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कीमोथेरेपी के सेशंस के लिए जाना पड़ेगा, तो पहली बार सुन के मुझे बहुत तकलीफ लगी कि अरे कीमोथेरेपी तो बहुत बुरी चीज होती है, ऐसा लोगों से सुन रखा था, तो बहुत तकलीफ लगी। बट फिर मेरी फैमिली, मैंने बताया, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, घर के सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं। फिर देन आई गॉट पॉजिटिव। फिर मेरे को ये समझ में आया किसी भी चीज को हम अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो हमारे लिए इजी हो जाती है। तो आई एक्सेप्टेड दैट कि अब मुझे कीमोथेरेपी करानी है, और क्योंकि मुझे ठीक होना है तो जो भी इलाज डॉक्टर कहेंगे वो मुझे कराना ही है। तो फिर आई वेंट फॉर कीमोथेरेपी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मेरी कीमोथेरेपी की फर्स्ट साइकिल थी, तो सुबह डॉक्टर मुझे साइकिल के लिए एडमिट करके और डोज दे के चले गए थे। और शाम को जब वो विजिट करने आए तो मेरे रूम में एक्चुअली 21 फैमिली मेंबर्स थे। तो डॉक्टर आके बोले कि आप लोग सब प्लीज बाहर जाएं तो मैं पेशेंट को देख लूं। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि फैमिली का, फ्रेंड्स का कितना बड़ा सपोर्ट होता है। और उन सब की वजह से, मतलब वो लोग मुझे हंसाते रह रहे थे, अच्छा आप क्या खाएगी, मखाने खाएगी, ये वो ऐसे करके, हंसी मजाक में, ताकि मैं उस टेंशन को ना कैरी करूं कि अब कीमोथेरेपी हुई है तो क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद मैं, हालांकि कीमोथेरेपी होती है तो आपको डेफिनेटली नेगेटिविटी आती है, यू फील लाइक क्राइंग। बट उस दौरान ही मैं एक एंजल से मिली जिनका नाम था डॉक्टर अनुपमा नेगी। मेरी फर्स्ट कीमो के दौरान ही उन्होंने मेरी काउंसलिंग की, और उन्होंने मुझे जब काउंसिल किया तो आई थॉट कि कितनी, वो खुद भी एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर थी, तो उन्होंने ये संगीनी की शुरुआत की थी। तो उन्होंने मुझे इतनी पॉजिटिविटी दी कि मैं अपना जो रोना आता था, जो कुछ भी चीजें आती थी, उसको भूल के एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के डिजीज से फाइट करने लगी। हालांकि ये होता था कि कीमो के ड्यूरेशन में आपको ऑन ऑफ डिप्रेशन आता ही है, बट दैट टाइम पास्ड अवे, धीरे 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 वो निकल गया। फिर उसके बाद मेरा 5 वीक्स का रेडिएशन हुआ, और मेरा लास्ट मतलब 30th रेडिएशन था, उसके दिन, उस दिन ही मेरे हस्बैंड को एंजाइना का पेन हुआ। तो कहते हैं ना कि ईश्वर कभी कभी परीक्षा लेने पे आ जाता है। तो उस वक्त फिर मेरे हस्बैंड को हमने डॉक्टर्स को दिखाया वगैरह, तो उन्होंने कहा कि आपको कभी भी, सक्सेना साहब, सीवियर हार्ट अटैक हो सकता है। फिर हम उनको लेकर के दिल्ली गए इंद्रप्रस्थ अपोलो में। बट मेरी सास और मेरी जिठानी वर वेरी वरीड, और मेरे पेरेंट्स भी कि अरे उनको अकेले जाने दो, अभी तो तुम पूरी रिकवर भी नहीं हुई हो, और अभी उनके साथ हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। बट देन आई थॉट कि मैं उनसे अलग भी रह नहीं सकती हूँ। पूरी जर्नी में, मेरी पूरी जर्नी की वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद उनको ये हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो मैं उनके साथ फिर दिल्ली चली गई, और फिर वहाँ उनकी बाईपास सर्जरी हुई। तो उसमें भी पूरे टाइम मैं उनके साथ हॉस्पिटल में थी। और ये, तो लोग तब हम लोगों को इस तरीके से कहते थे, क्या कर रहे हो तुम दोनों, एक लेटता है तो एक खड़ा हो जाता है इस तरीके से। बट
सबका सपोर्ट, और अंदर से मैंने फिर ये सोच लिया था कि पॉजिटिव रहने से सब चीजें बहुत अच्छे से हम फेस कर पाते हैं सिचुएशन को। आपने जैसे एक्सेप्ट करी सिचुएशन तो सब अच्छा होने लगता है। फिर जब मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो में थी तभी मैंने वहां पर एक पेशेंट्स थे कैंसर के, उनकी फैमिली बाहर आके डिस्कस कर रही थी। पेशेंट तो अंदर वार्ड में थे और बाहर आके उनके पेशेंट मतलब फैमिली मेंबर्स डिस्कस कर रहे थे कि अरे उनको कैसे डिस्क्लोज किया जाए, और अब ये तो बहुत बुरा हो गया, ऐसा कैंसर हो गया ये वो। तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से अपने आप से मन में आई, या अनुपमा ने शायद मेरे में इतनी एनर्जी भर दी थी। तो मैं जाकर के उनसे मिली और उनको मैंने कहा, तब मेरे सिर पे बिल्कुल छोटे छोटे से बाल थे, मतलब ऑलमोस्ट गंजी थी जिसको कह सकते हैं। फिर मैंने उनको जाकर कहा कि अभी मेरा ट्रीटमेंट एक महीने मतलब 20 डेज पहले ही पूरा हुआ है और अब मैं एब्सोल्युटली फाइन हूँ, तो आप चिंता नहीं करिए। अब आज के समय में हमारे पास बहुत अच्छी ड्रग्स आ गई हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आ गया है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो सब लोग अच्छी तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो उस दिन से मेरे को मन में ऐसा लगा कि उन लोगों को सेटिस्फेक्शन देके कि ये मिशन मुझे आगे बढ़ाते रहना चाहिए। कितनी बड़ी बात है कि अगर आप किसी से बोलते हैं और उसके मन में उस चीज को लेके आपको विश्वास आ जाता है, तो आपको दुनिया में उससे बड़ा कोई सुख नहीं लगता है कि किसी की तकलीफ में आप उसको समझा पाए या आप उसको हंसा पाए। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब जिसको कहते हैं अचीवमेंट है लाइफ का। और जैसे कैंसर होने के बाद हम सोचते हैं कि कैंसर हो गया तो अब लाइफ खत्म, बट मैं सोचती हूँ कि कैंसर ने मेरी तो बिल्कुल जिंदगी बदल दी। कैंसर होने के पहले आई वॉज लाइक डॉटर ऑफ, मेरे फादर बहुत अच्छे सीनियर एडवोकेट हैं इंदौर में, माय हस्बैंड इज आर्किटेक्ट, रिनाउंड आर्किटेक्ट, तो आई वॉज मिसेज अनुराधा सक्सेना लाइक। बट कैंसर होने के बाद नाउ आई हैव वन ऑफ माय ओन आइडेंटिटी, अनुराधा सक्सेना, एज अ संगीनी कोऑर्डिनेटर और हेल्पिंग सो मैनी पीपल। फिर अब आपको मैं बताती हूँ कि वो मेरी जर्नी, रेडिएशन खत्म हुआ, इनका ट्रीटमेंट खत्म हुआ, उसके बाद धीरे धीरे लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके समय निकलने लगा। और फिर डॉक्टर अनुपमा नेगी के साथ रह करके मैं धीरे धीरे पेशेंट्स को काउंसिल करने लगी, लिम्फेडिमा मैनेजमेंट उनसे सीखने लगी, ऐसा करके। फिर जब 2011 में उनकी डेथ हुई, तो उनके डेथ के 3 दिन पहले हमारा पूरा ग्रुप उनसे मिलने गए। तो शी वॉज सो वरीड कि उन्होंने इतनी मेहनत करी संगीनी के लिए, अब आगे इसको कौन चलाएगा। तो फिर हमारे साथ ही एक और है पद्मश्री डॉक्टर जनक पल्टा मेगिलन, शी इज सेक्रेटरी ऑफ आवर ग्रुप, वो और फिर मैं। फिर उन्होंने ही मुझे कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया, उनके फैमिली मेंबर्स और जनक दीदी ने मिलके, और उस दिन से फिर मैं संगीनी का काम करने लगी। पर अब ऐसा हुआ कि अनुपमा खुद डॉक्टर थी, शी वॉज पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया, तो उनका बहुत सारा बड़ा सर्कल था एंड एवरीबडी न्यू कि वो बहुत अच्छे से काउंसिल करती हैं और पेशेंट्स को हेल्प करती हैं। बट जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की तो डिफिकल्टी वॉज कि नोबडी वॉज एबल टू बिलीव इन मी, किसी को मेरे पे विश्वास ही नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगी ऐसा करके। तो शुरुआत में मुझे बहुत सी चीजें मतलब सोचनी पड़ी, जाके डॉक्टर्स से, ऑन्कोलॉजिस्ट से और उनको फिजिशियन से जाके बार बार मिलना पड़ा, फिर उनको कन्विंस करना पड़ा कि सर हम संगीनी को बंद नहीं करना चाहते हैं और जो इतना बड़ा मिशन अनुपमा स्टार्ट करके गई है उसको हम जरूर आगे बढ़ाएंगे। फिर इस तरीके से धीरे 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 कॉन्फिडेंस गेन किया डॉक्टर्स का। तो फिर डॉक्टर्स ने हमारे पास पेशेंट्स रेफर करना शुरू किए। तो 2-3 चीजें हो जाती हैं, जैसे आपको सबसे बड़ी बात, हम पहले दिन से ही पेशेंट से जुड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन किसी भी पेशेंट को डायग्नोज होता है कैंसर, उसको ऐसा लगता है कि अरे कैंसर हो गया, मतलब कैंसर इज जस्ट अ सेंटेंस, नॉट अ डेथ सेंटेंस, जस्ट अ वर्ड, नॉट अ डेथ सेंटेंस। मैं यही लोगों को बोलती हूँ कि कैंसर, उसको अगर हम दूसरी तरीके से स्पेल करें तो CANSIR, मतलब कैंसर, कि सर मैं आके आपको वो कर सकता हूँ क्या, मैं आपकी बॉडी में वो करने आ रहा हूँ। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि वो हमसे पूछता है कि कैन आई सर, कैन आई डिफीट यू और यू आर गोइंग टू डिफीट मी, तो हम उसको डिफीट करते हैं, ये हम मोटिव लेकर के चलते हैं। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो ऑन्कोलॉजिस्ट से धीरे धीरे मिल करके और पेशेंट से मिल करके, तो फिर हम पेशेंट्स के पास जा करके उनसे मिलते थे डे 1 से, जब से डायग्नोज हुआ पेशेंट का, उसको जा करके फिर यही बोलते थे कि इस सब दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ,
आपको भी ये सब कुछ चीज होगी तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको नहीं बताती कि मैं इस दौर से गुजरी हूँ या मैं कैंसर पेशेंट रह चुकी हूँ, तो आप क्या मुझे देख के जज कर पाते? तो पेशेंट्स को धीरे धीरे विश्वास आने लगता है कि हाँ, ये बात सही कह रही है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, कोई बीमार पड़ा तो सबसे बड़ी बात हो जाती है, बहुत सारे लोग इतनी सारी राय देने आते हैं कि मतलब जिनको कुछ नहीं पता होता है वो भी आपको बहुत सारी चीजें बता के जाते हैं। बट एक पेशेंट को जो उस दौर से गुजर चुका है, वो जा करके जब उस चीज को बताता है कोई पेशेंट को, तो उसको विश्वास आने लगता है कि हाँ, ये बात सही है, क्योंकि ये इनके साथ भी हो चुका है। फिर दूसरी बात होती है, कोई भी फीमेल के लिए एक ब्रेस्ट लूज करना अपने आप में बहुत बहुत बड़ा वो होता है, मतलब एक मेंटल ट्रॉमा होता है, उस चीज को आपको फेस करना बहुत मुश्किल। तो उस समय जाकर के फिर हम पेशेंट्स को वही बताते हैं। इसके लिए भी हमारे पास उपाय हैं, प्रोस्थेसिस यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कैंसर हो गया या आपका वो निकल गया, ब्रेस्ट निकल गया तो उसके बाद आपकी लाइफ एंड हो गई, नहीं। आप उसके बाद भी पूरी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, बहुत अच्छे से रह सकते हो इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग जैसे संगीनी की तरफ से लिम्फेडिमा मैनेजमेंट क्लिनिक रन करते हैं। तो उसमें डॉक्टर अनुपमा नेगी की भाभी है रूपिका सान्याल, वो पिछले मतलब 2008 से रेगुलरली वो कर रही हैं। और हम दोनों मिल करके फिर कितनी बार लिम्फेडिमा के वर्कशॉप्स वगैरह अरेंज करते हैं, ताकि पेशेंट्स को बता सकें कि आपको पोस्ट ऑपरेटिव सेशन में आपको एक्सरसाइजेस करनी जरूरी है, हाथ का मूवमेंट पूरा होना चाहिए, इस तरीके की चीजें। फिर दूसरी बात यह है कि मैंने हमेशा, जिसको कहते हैं ना, अपनी बीमारी के दौरान भी मैं शायद भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ, इसलिए वो हमारे साथ होता है। मतलब मतलब एक की टू सक्सेस ये है कैंसर में आपकी, कि आप अपने भगवान पे विश्वास करिए, अपने डॉक्टर पे विश्वास करिए, और सबसे बड़ी बात अपने आप पे विश्वास करिए। जब तक आप अपने आप पे और इन तीनों चीजों में आप करेंगे, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको हरा सके। तो इसके बाद आप अपने आप को विजेता ही कहलाएंगे। डेफिनेट है कि आप विजेता ही बनेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं। और फिर रही बात, सबको लगने लगता है कि जब कैंसर डायग्नोज हुआ कि मैं ही क्यों, तो इस प्रश्न का उत्तर तो दुनिया में कोई भी नहीं दे पाया। फिर लोगों को मैं समझाती हूँ कि मैं ही क्यों का उत्तर ये भी हो सकता है कि हम शायद ईश्वर को ज्यादा प्यारे हैं, और वो समझता है कि हम इस चीज को झेल पाएंगे, इसलिए वो हमारे से परीक्षा लेता है और हमको प्यार करता है ज्यादा, इसलिए वो हमें ज्यादा अटेंशन देने के लिए ये बीमारी देता है। तो जैसे मैं वही कहूंगी कि कैंसर होने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं पहले क्या जीवन जी रही थी, रोज उठो, खाना बनाओ, ये करो, मतलब लाइफ बस जी रही थी। बट इसके बाद, कैंसर के बाद, मुझे ऐसा लगा कि मुझे जिंदगी जीने का एक मकसद मिल गया। जब आपको कैंसर होता है, तब तक, जब तक नहीं होता है, या आप कोई भी डिजीज ऐसी जो आपको नजदीक से मौत के दर्शन ना कराए, आपको समझ नहीं आता है। बट एक बार उस चीज के दौर से गुजर जाने के बाद, फिर आपको लाइफ में इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि जिंदगी क्या है। तो उस समय फिर आप क्या करते हो कि लोगों को फॉरगिव करना शुरू कर देते हो, छोटी छोटी चीजों में लेट गो करना शुरू कर देते हो। तो फिर ये होता है कि हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगते हैं। आज इतना सा ये किया, उसमें ही खुशी है। मतलब अब मेरी जिंदगी में खुशी का मकसद ये है कि कोई अगर तकलीफ में है और वो मेरी बात से मुस्कुरा देता है, तो वो मेरे लिए जिंदगी की खुशी है। कितनी बार मेरे से जो भी पेशेंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं, फिर वो मेरे से पूछते हैं, दीदी आपकी फीस क्या है? तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आपकी मुस्कान जो है वो मेरी फीस है। तो इसलिए मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी इसी में खुश हूँ मैं, कि आप खुश हो रहे हैं। और खुशी बांट के जो मतलब मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैं शायद ईश्वर पे इतना विश्वास करती हूँ, जैसे एक बच्चे को हम गोद में लेकर और हवा में उछालते हैं, तो उसको पक्का पता होता है कि मेरे माँ बाप मुझे गिरने नहीं देंगे, वो मुझे गोद में संभाल ही लेंगे। उसी तरीके से हमें ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए। तो जब आपकी कीमोथेरेपी हो रही है या निगेटिविटी कुछ भी हो रही है, तो आप सिर्फ ईश्वर का मनन करें, ध्यान करें, तो अपने आप आपको पॉजिटिव, एक ही सिचुएशन में लोगों की हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है। और हैप्पीनेस क्या है, वैसे देखा जाए तो स्टेट ऑफ माइंड है आपका। आप खुश रहना चाहते हो तो आप खुश रह पाते हो। अगर आप उसी सिचुएशन में
सब चीजों की बुराई देखना चाहते हो तो आप बुरा फील करते हो। तो इसलिए हैप्पीनेस तो आपको अंदर से लानी है। जब भी हमारी कीमोथेरेपी चल रही है या कुछ, जैसे मैंने बताया, जैसे मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी, निगेटिविटी होती थी, बट फिर पॉजिटिव एटीट्यूड लेके मैं स्टार्ट करती थी, ईश्वर का नाम लेके ध्यान करती थी, और फिर पॉजिटिव होके, क्योंकि अगर आप एक आंसू रोते हो तो आपका परिवार आपके साथ 10 आंसू रोता है, क्योंकि वो और ज्यादा मजबूर होते हैं। क्योंकि वो, आप तो पेशेंट हो, बट जो केयर गिवर होते हैं, एक बार उनके हिसाब से अगर आप सोचें कि वो अपने आप को कितना मतलब मजबूर समझ, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कितनी बार होता है कि आपको कीमोथेरेपी हुई, उसके बाद आपको 2 या 3 दिन खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, बट घर के परिवार के सारे लोग आएंगे, आज क्या खाया, 2 और खाए, 1 और खाया, उनकी चिंता आप उनके चेहरे पे देख पाते हो। तो इसलिए अगर हम पॉजिटिव रहें तो हमारी फैमिली भी पूरी पॉजिटिव रहती है। वही मैंने करने की कोशिश करी अपनी बीमारी के दौरान, कि पॉजिटिव रहूं और सबको पॉजिटिव करूं। कोशिश करती थी मैं कि ना रोऊं, पर कभी कभी होता था कि नेगेटिविटी हो जाती थी। ऐसा नहीं है, मैं यूं नहीं कहूंगी, वैसे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, क्योंकि ये चीजें स्ट्रांग होना मुझे मेरे फादर से मिला है, और मतलब वो भी बहुत स्ट्रांग है, तो मैं बहुत स्ट्रांग रहती थी। बट कभी कभी हो जाता है लाइफ में, आपको मूड स्विंग्स आते हैं, तकलीफ होती है, तो आप रोने लगते हो, बट वो फेज निकल जाता है। तो कुछ भी चीज का हमको ये सोचना चाहिए कि आगे आने वाला जो समय है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए ईश्वर ने हमें ये दिया। फिर उसके बाद मैं बताना चाहूंगी संगिनी के बारे में। संगिनी में हम लोग प्रोस्थेसिस प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, उसके अलावा लिम्फेडिमा मैनेजमेंट करते हैं, फिर काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की और उनके फैमिली मेंबर्स की। वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मैंने देखा कितनी बार हम जाते हैं तो देखते हैं पेशेंट तो बहुत पॉजिटिव हैं, बट उनकी बेटी या उनके हस्बैंड वो इतने ज़्यादा निगेटिव होते हैं, और वो ज़्यादा रो रहे होते हैं या ज़्यादा परेशान हो रहे रहते हैं। तो फिर हमने धीरे धीरे पेशेंट्स के साथ उनकी फैमिली मेंबर्स को भी काउंसिल करना शुरू किया। फिर जब मैंने ये मिशन शुरू किया तो मुझे लगा मैं अकेली तो इतना, जैसे अनुपमा तो वन मैन आर्मी थी, क्योंकि उसके बहुत कॉन्टैक्ट्स भी थे, बीइंग अ डॉक्टर उसको सब अप्रोच भी करते थे, बट मैं शायद इतना काम नहीं कर पाऊँ। तो धीरे धीरे जिन लोगों को मैंने काउंसिल किया था, उनकी भी मुझे उनकी भी इच्छाएं ये हुई कि वो भी मेरे साथ जुड़ के कुछ काम करना चाहते हैं, और हेल्प करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने वॉलेंटियर्स की टीम तैयार करी, जिससे कि इंदौर के पूरे शहर में अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग पार्ट्स में हम जिस भी हॉस्पिटल्स में कैंसर के पेशेंट्स होते थे उनको जाके अटेंड कर सकें, ऐसा। तो उसमें मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए। उसमें मेरे साथ सीमा नातू हैं, विशाखा मराठे हैं, रूपिका सान्याल तो ऑलवेज थी, और बहुत सारे, मतलब नेहा भी जैसे अभी ज्वाइन कर लिया है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इस दौर से गुजरने के बाद खुद चाहते हैं कि नहीं, मैं भी आपके जैसा कुछ काम करना चाहती हूँ और अपनी लाइफ डिवोट करना चाहती हूँ ऐसे पेशेंट्स को। तो फिर इस तरीके से हमारी संगिनी की वॉलंटियर्स की एक टीम तैयार हो गई, जो कि चित्रा है, बहुत सारे लोग हैं जो जाकर के फिर अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके पेशेंट को काउंसिल करते हैं। अब जब बीमारी होती है तो बहुत सारी जगह मैंने ये देखा है कि लोग ना पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं। तो मैं लोगों से यही बोलती हूँ कि एक तो अपनी बीमारी कभी छुपाना नहीं चाहिए। मैं बल्कि जब मैं बीमार थी तो मेरे सिर पे बाल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं, बट मुझे मेरे लुक्स को लेके शायद मैं इतनी कॉन्शियस भी नहीं हूँ कभी। तो मुझे ऐसा कभी ऑकवर्ड फील नहीं हुआ कि मैं स्कार्फ पहन के भी पेंटालून्स घूमने जा रही हूँ या कुछ करने जा रही हूँ इस तरीके से। बट लोगों को बहुत अपने लुक्स के लिए और उसके लिए चिंता रहती है, तो उसके लिए भी हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अगर, पहली बात तो हम जब उनके बाल जाते हैं तब उनको बोलते हैं कि ये तो आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आपके बाल, मतलब हेयर लॉस हुआ है, दैट मीन्स कि दवाई ने आपके शरीर में बहुत अच्छा असर किया है। तो ये आप पॉजिटिव थॉट लेके चलिए। बाल जाने का दुख मत मनाइए, बाल तो वापस आ जाएंगे, वो घर की खेती है, 6 महीने में जैसे ही कीमो खत्म होगी वैसे ही आ जाएंगे। तो फिर लोगों को विश्वास आने लगता है कि हाँ ठीक है, इस तरीके से तो वो पॉजिटिविटी फैलाने से उस चीज से समझते हैं और करने लगते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास जो वॉलेंटियर्स की टीम तैयार हुई, वो लोग जाकर भी पूरे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को वो करने लगे, काउंसिल करने लगे। फिर उसके बाद में जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने शायद नेग्लिजेंस की वजह से अपनी डिजीज को आगे बढ़ा लिया। तो संगीनी जब से स्टार्ट हुआ था तब से ही डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय के साथ में
डॉक्टर अनुपमा नेगी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के प्रोग्राम स्टार्ट करते थे, मतलब करते थे हम लोग, अवेयरनेस प्रोग्राम्स रन करते थे। तो उस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए जिसमें विमेन को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाया, ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो चुके और आपकी डिजीज जल्दी पकड़ में आए, तो आपकी जो तकलीफ का टाइम है या आपको जो पूरा ट्रीटमेंट का टाइम है उसमें आप अच्छे से उसको कैरी कर सकें, निकाल सकें। और हम चाहते थे जैसे अब हम दूध के जले हो गए तो ईश्वर ना करे कि किसी को यह तकलीफ हो, इसलिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करने बहुत ज़रूरी है। तो वो प्रोग्राम्स हम संगीनी की तरफ से 15 लोग हों तो भी, 500 लोग हों तो भी जा करके करते हैं। वो डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे करके और इस तरीके से पूरा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पेशेंट्स को समझाते हैं। फिर उसके बाद ये है कि हम लोग संगीनी में एक प्रोग्राम करते हैं, संगीनी की उमंग जिसको बोलते हैं, एनुअल प्रोग्राम करते हैं अक्टूबर, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है। तो उसमें जब प्रोग्राम करते हैं तो उसमें पूरा प्रोग्राम जो है हमारी सारी विजेता मिलकर करती हैं। उसमें एमओसी भी हमारी विजेता होती हैं, कोई डांस ड्रामा होता है वो भी हमारी विजेता होती हैं। उसमें हम एक पैनल डिस्कशन रखते हैं जिसमें एक डॉक्टर्स के पैनल को बुलाते हैं, उसमें सर्जन होते हैं, फिजिशियन होते हैं और मतलब रेडिएशन वाले डॉक्टर होते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास बॉम्बे के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से ममता गोयनका जी आती हैं, जो हमको लिम्फेडिमा मैनेजमेंट के लिए वर्कशॉप दे करके जाती हैं उसी प्रोग्राम में। तो वो होती है, तो ऐसा एक पूरा पैनल बैठता है, वो पूरा अपने पेशेंट्स मतलब डॉक्टर्स से आपकी जो भी क्वेरीज हो वो सब बताते हैं, प्लास्टिक सर्जन वगैरह, मतलब पूरा टीम रहती है उसमें, वो लोग सब बताते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस प्रोग्राम को जब हम कंडक्ट करते हैं तो जो जो पेशेंट्स या मतलब जो विजेता मेरी इस प्रोग्राम में स्टेज पे आती हैं, उनके परिवार के लोगों की खुशी आप सोच नहीं सकते क्या होती, क्योंकि उन्होंने उस पेशेंट को जब कीमो थी या रेडिएशन थी बहुत तकलीफ वाली स्थिति में देखा था। मतलब अब जब से हमने संगीनी में ये कार्यक्रम शुरू किया है तब से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 30 साल पहले डांस छोड़ दिया था और फिर इतना कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाते थे कि आके स्टेज पे कुछ करें। मतलब डांस ड्रामा कुछ भी, जो भी हम संगीनी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें डांस भी होता है, ड्रामा भी होता है, सब चीजें होती हैं। तो लोगों को पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए और मैसेज देने के लिए कि देखिए अब हम कैंसर से जीत चुके हैं, और एड्रेस भी हम करते हैं ऐसे कि विजेता सो एंड सो आ रहे हैं, विजेता ये आ रहे हैं। तो उन परिवार के जो लोग रहते हैं उनको बहुत खुशी मिलती है। मतलब लिटरली आपको मैं बताऊं, वो आंसू से रोने लगते हैं जब अपने घर के परिवार के लोगों को ऊपर स्टेज पर परफॉर्मेंस करते देखते हैं। तब उनको लगता है कि अरे कैंसर ने इसको कहाँ से कहाँ ला दिया। तो दे आर हैप्पी, लाइक ऐसे ये वाली बात हो जाती है। और फिर दूसरी बात होती है जो जैसे पेशेंट बहुत सारे डिप्रेशन में रहते हैं या कुछ, उनके लिए भी डॉक्टर्स हमको रेफर करते हैं। फिर हम उनको भी कोशिश करते हैं, मतलब फोन पे भी काउंसिल करके, सामने भी जाके। तो मतलब आई एम अवेलेबल 24/7। किसी को रात में 12 बजे भी जरूरत है, 2 बजे भी जरूरत है, तो मुझे निसंकोच होकर फोन कर सकते हैं। तो इसी वजह से मेरी बहुत सारी बेटियां हैं इस ग्रुप में और बहुत सारे बहनें हैं जिनके साथ ऐसी बॉन्डिंग हो गई है अब कि उनको किसी वक्त भी जरूरत है तो उन्हें पता है कि आप वो मुझे आधी रात को भी कॉल करेंगे, नींद नहीं आ रही है, कुछ तकलीफ हो रही है, तो भी वो मुझको कॉल करके बात कर सकते हैं। ऐसा तो ये संगीनी की बॉन्डिंग है एक्चुअली, कि संगीनी ने इस तरीके के काम करना शुरू किए, लोगों को हैप्पीनेस स्प्रेड करना शुरू किया। फिर एक बार संगीनी की तरफ से हम लोगों ने एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि हमारी शो स्टॉपर जो थी वो टोटली बाल्ड थी। मतलब उसलिए कि हम लोगों को मैसेज देना चाहते थे कि हमारा कॉन्फिडेंस हमारी खूबसूरती है, हमारे लुक्स हमारी खूबसूरती नहीं है। इवन फाइटिंग विद द डिजीज हम अपने आप को बहुत खूबसूरत महसूस करते हैं और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हैं, पॉजिटिविटी रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपन पॉजिटिव अगर रहेंगे तो फिर आपको सब चीजें खूबसूरत लगेगी। अगर आप उसी माहौल में आप नेगेटिव फील करेंगे तो आपको लगेगा कि सब चीजें डिप्रेसिंग है, एकदम सैड है, ग्लूमी है। बट अगर आप उसी चीज को पॉजिटिव वे में देखेंगे और सोचेंगे कि अच्छा मैं अच्छे होंगे। जैसे आप बीमार हुए तो सबसे पहले आपको दिखता है आपका परिवार, आपके परिवार के लिए उठ के खड़ा होना है आपको, तो आपके पास मोटिवेशन है ऑलवेज कि मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चे के लिए अभी मुझे जीना है।
और मुझे ठीक होके खड़े होना है। तो इसलिए हमें जितने भी एफर्ट्स करने पड़े हम करेंगे, पर मैं मन में ये ठान लूं कि कुछ भी हो जाए, ये कैंसर को तो मैं हरा के रहूंगी और मैं विजेता बनूंगी। तो उन चीज को हम लेके चलते हैं कि हम विजेता बन के ही निकलेंगे। तो इसलिए डिप्रेशन या कुछ छोटा सा टाइम आता है, उसको निकल निकल जाने देते। फिर जैसे अब अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो 2008 में मेरे को डायग्नोसिस हुआ था। फिर 2014 में मेरा जब पेट स्कैन हुआ तो एब्सोल्युटली नॉर्मल था। तो मुझे लगा वहाँ जिंदगी में से अब कैंसर खत्म हो गया, अब ये कभी दोबारा मेरे पास आएगा नहीं। मतलब मुझे भगवान पे शायद इतना विश्वास है, तो मैं सुबह उठ के रोज अपने परिवार सबके लिए दुआ मांगती थी कि भगवान सबको अच्छा रखे। बट अपने खुद के लिए कभी मांगती नहीं थी। जैसे मैं सोचती थी मैं तो भगवान की गोद में हूँ तो अच्छी ही रहूंगी, कोई चिंता की बात ही नहीं है। ऐसा। तो जब मेरी बीमारी हुई तो मेरे को ऐसा लगा कि इस बीमारी में लोग, परिवार के लोग क्या करते हैं, पेशेंट को आइसोलेट कर देते हैं, या फिर अब पेशेंट अपने आप को भी आइसोलेट कर लेता है कि सोच करके कि अरे अभी मेरे बाल नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं किससे क्या जाके बोलूं, लोग मुझे ये कहेंगे वो कहेंगे। तो मैं ये बोलती हूँ लोगों से कि एक तो अपनी बीमारी ना छुपाएं, अपनी बीमारी बताएं लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि आप इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं। तो वो हमेशा आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं और वो आपके बहुत काम आती है, बहुत अच्छा उससे आपको रिस्पॉन्स मिलता है। और दूसरी बात ये होती है कि सब आपके वेल विशर्स होते हैं जो आपके लिए पूछते हैं। तो वो आपको जब भी पूछ रहे हैं ये बीमारी, तो लोग सोचते हैं अरे वाह देखो ये इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही है, फिर भी कितनी हिम्मत है। तो उन सबको भी हिम्मत आती। तो ये हिम्मत ही हमको एक दूसरे को बांटनी रहती है। मतलब हम एक दूसरे को हिम्मत बांटते हैं, तो उससे हमको, सभी लोगों को बहुत पॉजिटिविटी मिल जाती है। और फिर उससे जंग लड़ने के लिए मन में विश्वास आ जाता है कि इसको तो हम हरा कर ही रहेंगे, और मुझे उठ के खड़ा होना है और मैं खड़े होकर रहूंगा। और फिर जब जैसे मेरी बीमारी के टाइम पे मैंने अपनी बहुत सारी हॉबीज को डेवलप किया, जिसको कहते हैं कि मैंने उस समय, टाइम होता था, बीमार हैं आप उसके बाद, तो अगर आप बीमार हैं उस समय आप अपने शरीर के ही बारे में सोचते रहेंगे तो जरूर ही आपको कुछ ना कुछ तकलीफ शरीर में मिलती रहेगी। क्योंकि आप सोचते हैं अरे आज इधर दर्द हो रहा है, आज उधर दर्द हो रहा है, अब ये तो नहीं हो गया, ये वापस कैंसर से रिलेटेड तो नहीं है। तो उसलिए जरूरी है कि जब भी आपको बीमारी हुई है या आपका इलाज चल रहा है, उस दौरान भी आप अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आज कीमो कराई और जॉब पे जाना है तो डिटरमिन्ड कि कल जॉब पे जाना है, मतलब जाना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उस चीज के लिए गिव अप कर देते हैं, नहीं अभी मेरा तो इस तरीके से चल रहा है तो मैं ये कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैडम रोटी बेल सकते हैं क्या, खाना बना सकते हैं क्या। तो फिर उनको हम यही बताते हैं कि हाँ हम सब कर सकते हैं, जब आपको तबीयत ठीक लग रही है तो आप जितना कर सकते हो उतना करो। क्योंकि आप अगर अकेले रहेंगे, अप, अपने दोस्तों से दूर, अपने परिवार से दूर, तो आपको सिवाय अपनी शरीर बीमारी के और कुछ भी नहीं सूझेगा। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें। तो जैसे जब मेरी बीमारी हुई उसके बाद मैंने मांडना बनाना शुरू किया है, बहुत सारा, मतलब बहुत सारा क्राफ्ट वर्क करना शुरू किया, पेंटिंग करनी शुरू करी, बहुत सारी चीजें। तो मैं अपने आप को ऑक्यूपाइड रखती थी और वो चीजें करने से मेरे को ना एक अचीवमेंट की फीलिंग होती थी कि हैप्पीनेस, मतलब आपने कुछ भी क्रिएटिविटी की तो यू फील कि अरे वाह ये मैंने क्रिएट किया, आई एम सो हैप्पी। इस तरीके से तो हैप्पीनेस अपने आप को अंदर लानी पड़ती है आपको कि हैप्पी हो जाए उस तरीके से। और फिर सीधी सी बात है कि अब आपको इतनी बीमारी होने के बाद आपको लाइफ का इम्पोर्टेंस समझना आता है। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि लोगों को मैं जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ, जितनी मदद करके उनके लिए खुशियाँ फैला सकती हूँ वो करूँ। और दूसरा ये है कि हैप्पीनेस के लिए जैसे बोलते हैं या इसके लिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ के लिए, तो इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ ऐसा हो जाता है कि हम छोटी चीजें छोड़ के बड़ी चीजों में खुशियां ढूंढने लगते हैं, सॉरी बड़ी चीजें छोड़ के छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लगते हैं। और आप लोगों को माफ करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी चीजें उस तरीके से आपके जीवन में बदल जाती हैं, आपके लिए खुशी क्या है क्या नहीं है, इस तरीके से। और फिर दो तीन चीजें होती हैं कि आप जब तकलीफ के समय से गुजर रहे होते हैं
तो आपके पास परिवार और सब होता है, बट संगीनी क्या करता है कि जैसे आप कर रहे हो डिम्पल, हेड्स ऑफ टू यू, मेहुल भैया भी कर रहे हैं, जो सब इस दौर से गुजरे हैं उन सबको जिंदगी में इम्पोर्टेंस पता है और इस जर्नी के लिए पता है कि क्या तकलीफें आती हैं। तो हम सब मिल करके चाहते हैं कि और लोगों को इस तरीके की तकलीफें ना हो, तो इसलिए हम जो भी कुछ कोशिश करके उनके लिए कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। तो लोगों से आपकी इतनी प्यारी बॉन्डिंग हो जाती है कि आ, मैं सोचती हूँ उससे बड़ा मतलब अब जो मेरा संगिनी है, मैं उसको कहती हूँ मेरा कुनबा है। मतलब फैमिली रिलेटिव्स वो सब तो डेफिनेटली है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो अब मेरे साथ की मेरी संगिनियां हैं, मेरी मतलब फ्रेंड्स हैं, बेटियां हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारी लोग, बच्चों की तो मैं माँ जैसी हूँ, बहुत सारी की बहन जैसी हूँ। तो ये मेरा एक कुनबा है, और इस कुनबे की जो बॉन्डिंग है वो शायद ब्लड रिलेशन से भी ऊपर है, आई सपोज, ऐसा ऐसा मेरा सोचना है। इस तरीके से। और फिर ये होता है कि आप जैसे इस दौरान जब हम बीमारी से और इससे सबसे निकलते हैं, तो कितनी बार हम लोग सोचते हैं कि जिंदगी में कभी अच्छे ओकेजन्स आ रहे हैं, ये आपका बर्थडे है, गिफ्ट है, तो बहुत सारी समय हमको समझ नहीं आता है कि हमें किसी को क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो मैं लोगों से बोलती हूँ कि हमें जैसे अपनी दादी है, नानी है या माँ है घर में, आपने देखा होगा हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा नेग्लिजेंस लेडीज अपनी हेल्थ को लेके करती हैं। तो उसलिए हम उनको बोलते हैं कि जब आपकी मॉम का बर्थडे हो, नानी का हो, दादी का हो, तो उनको एक मेमोग्राफी की टेस्ट आप गिफ्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उनको टेस्ट गिफ्ट कर देंगी तो डेफिनेटली वो करवाएंगी, और एल्स वो सोचती है नहीं ठीक है मेरा तो सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, इस तरीके से। तो ये चीजें हम छोटी छोटी चीजें करके हम लोगों के बीच मतलब हम कोशिश करते हैं कि कम कैंसर स्प्रेड हो, और अपने को भी जैसे जो हम तकलीफ से निकले हैं वो वाली तकलीफ लोगों को ना हो कम से कम। तो इस तरीके से चीजें हम करेंगे तो लोगों के पास इन्वेस्टिगेशंस के लिए जाने के लिए एक मोटो हो जाता है कि नहीं आपको जाना ही है, इस तरीके से। तो वो भी हमको हेल्प करता है अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। और फिर बहुत सारी चीजें ये है कि जिंदगी में खुश रहना, पॉजिटिव रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। जो आप सोचते हैं वो ही आप कर पाते हैं। ये सब कुछ करने से मेरे जीवन में बहुत खुशी आई। फिर जब मेरे को दूसरी बार 2019 में कैंसर रीअकरेंस हुआ, तो मुझे स्पाइन में विथ बोन इन्वॉल्वमेंट कैंसर आया। तब मेरे को बहुत तकलीफ के स्टेटस में थी, मतलब उसके बाद मुझे पैलेटिव रेडिएशन हुई, और फिर वो जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट थी, बट तब भी मैं फिर पॉजिटिव रही। और तब उस समय मुझे ऐसा उम्मीद भी नहीं हो रही थी कि मैं शायद उठ के खड़ी हो पाऊंगी। पर मुझे लगता है कि शायद इतने जो सालों में मेरे साथ जो लोग जुड़ गए, उन सबकी दुआओं ने मुझे उठ के खड़ा कर दिया। तो ईश्वर हमारे साथ उस समय भी था, इस समय भी है, और इसलिए उसने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया। शायद ये लोग सब मेरा सपोर्ट सिस्टम है, जो मुझे इतनी दुआएं दी, तो मैं उस बीमारी से लड़के फिर खड़ी हो पाई और फिर अपने मिशन में वापस जुड़ गई। इस तरीके से मैं मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि वो जिंदगी में मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इन सब का साथ होने से, इन सबको खुशी बिखेरने से ईश्वर ने मेरा साथ दिया और मुझे उठा के खड़ा किया, ऐसा इस तरीके से। और मैं लोगों को बस एक मैसेज देना चाहती हूँ कि एक तो ये है कि जो भगवान ने जीवन दिया है उसके लिए मैं भी जैसे उठ के रोज सुबह ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज का आपने मुझे दिन दिया, और आज के इस दिन का मैं भरपूर उपयोग कर सकूं। देखिए जीवन में मौत सबकी आनी है, जो इस दुनिया में आया उसकी आनी है, बट हमें ये भी नहीं पता है कि वो कैसे आएगी। पर हमारे पास ये जरूर है कि हमें जीवन जीना कैसे है, हमें अपना जीवन कैसे जीना है वो हमारे हाथ में है। तो जो आज का दिन मिला है उसे हम भरपूर जिए। और जो कुछ चीजें मैं अभी तक जीवन में नहीं कर पाई थी, मतलब कैंसर से पहले बताना चाहती हूँ। कैंसर के पहले मैंने बताया ना, साधारण जैसे जीवन चलता है वैसे ही चल रहा था, बट कैंसर के बाद मैंने सब चीजें करना शुरू कर दी जीवन में। मतलब जो चीज भी मुझे लगता है कि ये मुझे करनी है, मैं वो कर लेती हूँ। चाहे वो डांस हो, ड्रामा हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, मतलब
स्विमिंग हो, जो भी कुछ करना है आपको, सब कुछ करने की मैं इच्छा रखती हूँ और उसको अचीव करने की कोशिश करती हूँ कि मैं कर ही लूँ उस तरीके। तो बेसिकली ये है कि आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, लाइफ के लिए होप होनी चाहिए, तो सब चीजें अच्छी चलती है। आई थिंक दैट इज इनफ। यू वांट मी टू स्पीक मोर? Wow, thank you so much, Anuradha ji, for sharing your beautiful experience. I think I am. I don't have words to express what all you have shared. I want to take a moment and absorb everything, your journey, your own journey with cancer, and जैसे आप विजेता बन के निकले और उसके बाद में जैसे आप और सबकी हेल्प कर रहे हैं, and you are also training others to help other cancer patients and vijetas. So hats off to you for all the work that you do. And I feel we are the blessed ones who is able to do something to help someone in need. So through your cancer journey, you discovered your purpose of life. कि अब मुझे मेरी पहचान क्या है, अब मुझे करना क्या है, and that's what you discovered, you realized, and it's wonderful the way you are leading it today. So very very touched by hearing you, and the way you shared about the early detection कि आपने काश डॉक्टर की बात पहले सुन ली होती. So it's very important कि we all focus on the early diagnosis, early detection, not ignoring the symptoms, क्योंकि breast cancer तो बहुत easily detect हो जाता है. So thank you for sharing that with all of us. And I always believe that family, friends, love and support matters a lot. And on this, when as I was hearing your experience, I was also, like Rumi's poem was coming into my mind, and Rumi has written beautiful poems on love. And love is what binds all of us together. Love is what it's a experience, it's a feeling that help us when we are going through such difficult circumstances, and it can be with anyone and everyone. So there's a small beautiful poem by Rumi. It says that love is reckless. It's not a reason. Reason seeks a profit. Love comes on strong, consuming herself unabashed. Yet, in the midst of suffering, love proceeds like a milestone, hard surfaced and straightforward. Having died of self interest, she risked everything and asked for nothing. Love gambles away every gift God bestows. Without cause, God gave us being. Without cause, give it back again. So it's beautiful and wonderful to see the way you all are giving this love back again to the society, to the community, to those who are going through this journey. जब आपको डिटेक्ट हुआ था तो डॉक्टर नेगी was there to handhold you, and that's a blessing that now you are able to handhold many others who are in need. So wonderful, and bow down to you for the work that you are doing and helping other cancer patients. I just got 2-3 requests on the personal chat that I want to connect to Anuradha ji. So that's wonderful, because उस वक्त जब diagnosis होता है, when we are going through this journey, all that matters is कि हमें कोई और ऐसा मिल जाए जो इस journey से निकला है. If I can connect with somebody who has gone through the journey, because more than doctor, more than any other expert, we connect the most with the person who herself or himself has gone through the journey. And you have opened your doors for all of others, so thank you. And your daughter says that, Mama, I'm proud of you. So we all are proud of you. You are mother of many many children, so we all are proud of you. Yeah. So I would like to request other Sangini members to, you can unmute yourself. I will just check if the permission is there. And आप मैं देख रही हूँ कि आज मतलब आपके सारे फैन एक साथ में हैं यहाँ पे. So good to see. And unfortunately the situation outside is not good. Especially पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि अचानक से ये क्या हो गया है बाहर. Yet इतना डिस्टेंस होकर के भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो पा रहे हैं और एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं. अपनी we are able to share our love, blessings and support for each other. The moment of laughter. Since morning there was a lot of chaos. It's like a crisis situation when you see on groups that ये चाहिए. It's very definitely बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अचानक से ये क्या हो गया है.
एंड यहाँ पे कुछ और बैड न्यूज आ रही है, वहाँ पे कुछ और हो रहा है, ये चाहिए तो, एंड इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस क्राइसिस आई थिंक this spending this 1 hour with all of you, it's like for me it's like a safe heaven. The first guideline of Healing Circle is that it's like a safe heaven, so I can today experience that safe heaven with all of you, that this is our safe space where we are able to share what we are going through, and we pray that all the people who are going through the difficult times today due to corona, due to cancer, we pray that they receive all the help that they need right now. Situation is not good, so I just hope let's take a minute of silence here to pray for those who need our love, prayer, and blessings. We'll take a minute of silence here. Thank you. Thank you. Thank you. So मैं अभी I would invite संगिनी के members को, मैं सबको नहीं जानती हूँ, so it's an open platform, so आप अपने आप को unmute कर सकते हैं, and if you want to share anything, your own experience with cancer, your own experience with संगिनी, would request you to share. Thank you. And thank you Dimple for such a wonderful session. और अभी आप जो बोल रहे हो कि chaos की स्थिति और ये सब, I was also in mess since last 2 hours. मेरी भी एक friend के दामाद को के लिए हॉस्पिटल में बेड अरेंज करना था, तो वी वर सो बिजी डूइंग दैट ना। फिर आज घर की 4:45 बजे, मैंने कहा अब मैं 1 घंटे नहीं मिल पाऊंगी, उसके बाद में आई एम देयर। तो वही मैं बोल रही हूँ कि अभी इस दौरान मतलब पूरे वर्ल्ड में आई थिंक बहुत नेगेटिविटी हो रही है, तो वी ऑल नीड टू प्रे टू गॉड एंड बी पॉजिटिव कि सब कुछ अच्छा होगा। जैसे बुरा टाइम नहीं रहता है, जैसे अच्छा टाइम बहुत टाइम नहीं रहता है, वैसे बुरा टाइम भी बहुत टाइम नहीं रहेगा। दिस शैल आल्सो पास ओवर। Right. Praying for everybody's good health and wishes. Yeah. Neha, would you like to share? Hi Dimple दी। Hi. हेलो आंटी। डिम्पल दी, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी, जब जब मैं आपके हीलिंग सर्कल्स अटेंड करती थी तब मेरी दिली इच्छा थी, मतलब ख्वाहिश थी कि मैं आंटी को यहाँ देखूं और आंटी को सुनूं, तो उसके लिए आपको थैंक यू। और आंटी के लिए भी मैं आंटी को पर्सनली बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं आंटी ने 2017 में मेरी काउंसलिंग करी थी, जब मैं आंटी से मिली थी। मुझे वो नहीं पता था कि उस टाइम आंटी से मेरी बॉन्डिंग इतनी हो जाएगी कि मुझे लाइफ में 2 माओं का प्यार है, एक मेरी मम्मा, एक मेरी ताई जी मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे नहीं पता था कैंसर के बाद मुझे एक माँ और मिल जाएगी। तो मैं अपने आप को पूरा ब्लेस्ड मानती हूँ कि कैंसर की जर्नी के बाद मैंने, जैसे आंटी बोलती हैं कि लाइफ पूरी चेंज कर दी, मेरी लाइफ कैंसर ने चेंज कर दी, जिसमें मुझे आंटी मिली। और मेरी बहुत पॉजिटिविटी, मतलब मैं जो आज हूँ, मैं आंटी को उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूंगी। ऐसे बोलती नहीं हूँ क्योंकि वो मेरी माँ है, लेकिन आज इस जगह मैं आंटी को थैंक यू बोलूंगी। और बस आंटी से यही बोलूंगी, आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही इंस्पायर करते रहिए सबको, और मुझे आपका हमेशा प्यार मिलता रहे। थैंक यू आंटी, लव यू सो मच। लव यू टू। वेरी टचिंग। थैंक यू नेहा। नेहा मैं एक बात कहना चाहूंगी, आंटी मत कहो ना। दीदी को आंटी मत कहो। हाँ, एक चीज और डिम्पल दी, जब मैं संगिनी से मिली थी तो बिल्कुल सही कहा, सभी लोग अनुराधा आंटी को दीदी बोलते हैं, और मैं एक अकेली, मैं मतलब उस टाइम बहुत हेजिटेशन में इनसे मिलने गई थी, अकेली गई थी उस टाइम पे, तो मैंने इनको आंटी आंटी कहा, तो वो एक वर्ड था आंटी, जो आज तक मुझे सब संगिनी में दीदी चिढ़ाते भी है कि मैं अकेली एक आंटी बोलती हूँ, अदरवाइज सब इनको दीदी बोलते हैं। अनुदी तो सबकी दी है, सबकी सपोर्टर दी है। हाँ, हमारी माँ है। हाँ बिल्कुल, हमारी तो दी है। थैंक यू। अनुदी का हेलो बहुत डिम्पल। सपोर्ट रहा। हेलो डिम्पल, हाय। मैं अनुराधा जी की बहुत करीब हूँ, मैं उनके साथ ही रहती हूँ, और मैं उसके लिए कुछ बोलना चाहूंगी आज। ओह वंडरफुल। वो हम लोगों को बहुत हिम्मत देती है। मैं कैंसर पेशेंट नहीं हूँ, मैं नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, पर कभी हमारी भी तबीयत खराब होती है तो वो हमें तब भी बहुत हिम्मत देती है। इसकी वजह से हम लोग भी हिम्मत रखते हैं कि हमारे साथ। और कुछ नहीं बोल पाऊंगी।
अनुरुद्धि एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस भी देती है मुझे, कोई भी चीज के लिए सलाह लेना होती है। अपार्ट फ्रॉम कैंसर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं उनको कॉल करके पूछ लेती हूँ कि क्या करना है तो मुझे सही राय मिल जाती है। थैंक यू। कोमल, आप कुछ बोलना चाहते थे क्या? यस कोमल। कोमल को तो जरूर बोलना चाहिए। निशा कुछ बोलिए। हाँ, हेलो आंटी, हाय डिम्पल। राधा दीदी, हाय। मैं यही कहूंगी कि है ना, मुझे, हाँ कोमल बोलो फिर मैं बोलती हूँ। आप बोलो। आई एम वेटिंग। मेरे को आंटी से नेहा ने मिलवाया। एक्चुअली नेहा से मेरी मुलाकात हुई थी चोइथराम हॉस्पिटल से। तो जब मुझे भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था, मैं भी बहुत डिप्रेस्ड रहती थी और मुझे एक दोस्त की बहुत ज्यादा जरूरी थी, बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती थी। तो फिर नेहा मिली और नेहा से आंटी और आंटी से सब। तो मतलब मेरी एकदम लाइफ चेंज हो गई। और जो आंटी ने कहा ना कि एक छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो, तो मतलब इन्होंने, नेहा ने इतना ज्यादा मेरी काउंसलिंग की कि आज मुझे किसी भी चीज का गम नहीं होता। मतलब वो बोलती है जो चीज वो मैं मानती हूँ। और सही में जो भी छोटी छोटी चीजों की मुझे प्रॉब्लम होती है या मुझे कोई टेंशन होता है या कुछ भी होता है ना, मैं आंटी को कभी भी कॉल करूँ या मैसेज करूँ, आंटी हमेशा रिप्लाई करती हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि हाँ, मेरे लिए कोई है यहाँ पे। तो मैं नेहा को भी, मेरी नेहू डार्लिंग को और आंटी को, और मैं सबको एकदम थैंक्स बोलूंगी। थैंक यू नहीं बोलना है बच्चे, माँ को धन्यवाद नहीं करते हैं। हाँ, आंटी तो माँ है। मतलब एक चीज और मुझे आंटी की, मतलब उस दिन तो सच में मेरे आंसू आ गए थे। मैंने आंटी को एक बार बस ऐसे नॉर्मल बोला था, आंटी आपकी पेंटिंग कितनी अच्छी रहती है, मेरे लिए भी एक पेंटिंग बनाइएगा। और आंटी ने वो पेंटिंग मेरे लिए बना के रख दी कि देख निशु तेरे लिए है। मतलब कोई ऐसा नहीं करता है, बट आंटी ने मेरे, स्पेशली मेरे लिए टाइम निकाल के वो पेंटिंग बना के दी। वंडरफुल। कोमल कहाँ गई? हाँ, मैं यहाँ पे हूँ, बोलूं? यस कोमल। मुझे यानी कि है ना, मेरा जब सेकेंड टाइम डायग्नोसिस हुआ था तब अनुराधा दी मेरे साथ ऐसे थी जैसे छाया हो, क्या करना है और डॉक्टर ने क्या कहा, यानी डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर आऊं और पहले उनका फोन रहता था कि अभी क्या बोला डॉक्टर ने। यानी कि वो एक इतना सपोर्ट सिस्टम थी कि यानी हर जैसे मेरा बॉम्बे में था तो वो चिंतामन गणेश है, वहां पे चली जा, और यानी ऐसे ध्यान रखती है जैसे सच्ची में माँ हूँ। और है ना, अपनी जो खुशी होती है, जैसे अभी मैं मम्मा के यहाँ रहने गई तो वो ज्यादा खुश होती है। और है ना, उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो बार बार बोलती है कि है ना कोमल, कि मैं तो भगवान की गोद में बैठ जाती हूँ और फिर वो संभाल लेंगे। So many तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ओके। हाँ हेलो, मैं प्रेमलता परिहा। हाय। हाय, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते अनुदी, सब फ्रेंड्स, नमस्ते सबको। मुझे अनुदी से हम जब भी मिलते हैं तो एक नया उत्साह आ जाता है, नई खुशी आ जाती है। थोड़ा सा कभी कभी डलनेस आ जाती है तो फिर सोचते नहीं नहीं, मैं तो देवास में रहती हूँ, लेकिन जब कोई कुछ मीटिंग या कुछ प्रोग्राम होते हैं तो कभी मन करता नहीं जाना, लेकिन फिर ऐसा लगता नहीं नहीं चलना पड़ेगा। तो मतलब वहां जाके जो एनर्जी मिलती है तो उसको मैं बयान नहीं कर सकती। फिर फटाफट तैयार होती हूँ और मतलब खैर मैं संगीनी में अनुदी से फर्स्ट कीमो के दौरान ही मिली थी, और वो भी प्रोग्राम था प्रीतम लाल दुआ सभागृह में जो प्रोग्राम था। तो उसमें जब हमने पेपर में देखा कि वहाँ पे कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है तो मतलब सोचा भी नहीं था कि इसका भी कोई प्रोग्राम होता होगा,
फिर हम लोग उससे जुड़े और दीदी ने तो इतना सपोर्ट किया। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी होती थी तो मैं अनुदी से ही पूछती थी फोन करके कि दीदी क्या ये ऐसा हो सकता है क्या, या ये खा सकते हैं क्या, या मतलब और कुछ भी प्रॉब्लम थे मेरे हस्बैंड भी उनसे पूछ लेते कि अनुदी से पूछ ले, मुझसे मत पूछ। तो मतलब अनु दीदी हर समय चाहे दिन हो रात हो हमेशा मतलब फोन उठा लेते थे, कभी मना नहीं बोलते। मतलब बहुत 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 सपोर्ट करते हैं। और आज भी जब कभी हम बिजी रहते हैं या कुछ न कुछ नए नए एक्टिविटी करते रहते हैं, कभी मेरा घर में आ जाओ, मतलब आगे बढ़ाते रहते हैं। Thank you for sharing all of your wonderful experience. We always say that we heal in community, and today I can see आप सबने जो experience share किया that yes we do heal in community. और यहाँ पे मोस्ट ऑफ अस इधर हम लोग या तो कैंसर से निकले हैं या फिर निकल रहे हैं या फिर हम केयर गिवर रह चुके हैं और या फिर हम करंट केयर गिवर्स हैं। एंड उस वक्त जर्नी बहुत डिफिकल्ट लगती है, बट व्हेन यू हैव द राइट सपोर्ट सिस्टम, when you know what exactly to do and where to go, who is your go-to person, it all seems very easy and convenient. तो मैं देख रही हूँ कि आप सबके पास में वो सपोर्ट है, and it's really wonderful what you all have created to be there for each other. And I will request now Mehul, Rajendra ji, and others to share your experience about this. Yeah, because you all are doing wonderful work helping other cancer patients. So Mehul, would you like to share anything? Yeah, definitely. Thank you, Dimple, for making this platform. And अनुराधा जी, आपको सुनने के लिए तो मैं मतलब काफी दिनों से रुका था कि एक बार आपको ऐसे लाइव सुनूं ना, आपसे चैट किया है, लेकिन ये अलग ही अनुभव है। और आपने जो भी बातें की, लाइक बिलीव इन योर डॉक्टर, भगवान पे भरोसा रखो और ना नेगेटिव पीपल को दूर रखो, ये सब एकदम मतलब दे आर सो ट्रू। एंड मतलब मेरा जब इलाज चल रहा था तब ऐसे कोई था नहीं प्लेटफॉर्म की, है ना, कि ऐसे सब सपोर्ट मिले। सो आई एम डेफिनेटली अवेयर दैट यू नो काफी लोगों को आपसे एनकरेजमेंट मैं देख ही रहा हूँ। मतलब इतने स्माइलिंग चेहरे, उसमें मैं गाड़ी वाला बीच में बैठा हुआ है। नहीं, बट यू आर आल्सो डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और हम इस मिशन में, आपके एंटी टोबैको मिशन में भी हम आपके साथ में हैं। जो भी कोशिश, मतलब यहाँ पे जैसे इंदौर में मैराथन वगैरह भी अरेंज होती है कितनी बार, तो हम सब संगीनीज पार्टिसिपेट करते हैं। एक बार एंटी टोबैको कैंपेन के उसमें भी हुई थी, तो वी ऑल पार्टिसिपेटेड और गिविंग द मैसेज टू सोसाइटी की टोबैको से आपका कैंसर के चांसेस रहते हैं वगैरह। तो हम भी आपके साथ आपके मिशन में हेल्प करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी हम आपके काम आ सके। नहीं बिल्कुल, आपके मतलब बहुत थैंक यू। आप मतलब इतना ध्यान रखते हैं बाकी लोगों का भी। और ये जो आप जो कर रहे हो काम, वो मतलब एक दूसरे को जोड़ना वगैरह बहुत अच्छा है। मतलब आई रियली अप्रिशिएट आप जो भी करते हो। आप बस बहुत दुआएं पाओगे तो अच्छा, मतलब थैंक यू सो मच। Wonderful. Thank you so much. Anybody wants to share anything? Okay. Okay. तो अनुराधा जी, आपने शेयर किया कि आपका अभी दोबारा कैंसर 2019 में यू हैड स्पाइनल कैंसर अगेन। सर यू आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया है, अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है? या मेरी अब सिर्फ एक हार्मोन थेरेपी की मेडिसिन चल रही है। मेरा पैलेटिव रेडिएशन हुआ था और मुझे कीमो नहीं दी गई सेकेंड टाइम में, और हार्मोन पॉजिटिव में पहले भी थी, तो आई वाज ऑन मतलब टैमोक्सिफेन, और अभी मुझे लेट्रिजोल कंपाउंड दिया गया है। सिमरन वांट्स टू स्पीक समथिंग। या प्लीज। हाय डिम्पल दी। हेलो। अनुराधा आंटी के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आंटी कह रही हूँ, एक्चुअली वो मेरी मॉम है, मैं उनसे मॉम ही कहती हूँ। और सच कह रहे हैं आंटी कि ना वो ना हम उनकी बेटी हैं, उन्होंने हमें बिल्कुल वो मम्मा जैसा प्यार ही दिया है। और मैं भी बहुत छोटी सी एज में मुझे कैंसर हुआ, 26 की एज में मुझे कैंसर हुआ, और बहुत डरी हुई थी मैं। और बहुत सी चीजें ना ये जर्नी के थ्रू होती है, तो हम लोग डर जाते हैं कि फिर से तो नहीं हो रहा है, फिर से तो नहीं हो रहा है। तो मुझे मम्मा ने ना एक बार डांट लगाई थी कि आज के बाद ये सोचना नहीं है, फिर से हो रहा है क्या ये सोचना, और एकदम पॉजिटिव रहना सिखाया है उन्होंने। और
बहुत कुछ करते हैं वो हमारे लिए। जैसे किसी को कुछ होता है ना, उनके लिए पाठ भी करते हैं, प्रे करते हैं। हम कितनी भी लेट नाइट उनको कॉल करें, कभी भी काम के टाइम भी कॉल करें, तो वो हमारा कॉल जरूर आंसर करते हैं। Wow, thank you. The beauty of अनुराधा जी. एक्चुअली भगवान में बहुत विश्वास करती हूँ, इसलिए डेफिनेटली जैसे नेहा का भी ऑपरेशन चल रहा था तब भी मैं बैठ के उसके लिए पूरे टाइम पाठ कर रही थी, और टिल द डेट आई एम रेगुलरली प्रेइंग फॉर हर। तो मैं सोचती हूँ कि ये जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, ये ईश्वर से जो हमारी अर्जी लगती है, वो ईश्वर जाके जरूर उस व्यक्ति को ठीक करता है। इसलिए मैं बिल्कुल उनके लिए, सबके लिए पूजा पाठ करती हूँ, इवन व्रत भी रखती हूँ कितनी बार लोगों के लिए, कि ईश्वर मतलब मेरे कुछ करने से, मेरे अच्छे कर्म करने से उनको अच्छा कर दे ऐसा। अनुराधा जी, आप सबका इतना ध्यान रखते हैं, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ? जी क्या बोले? आप खुद का कैसे ध्यान रखते हैं? मेरी जिंदगी का एक ही मूल मंत्र है, खुश रहो। बहुत ज्यादा टेंशन पालने से जीवन में कुछ नहीं होता है। मैंने बताया ना, आज जो दिन मिला है उसके लिए उठ के ईश्वर को धन्यवाद करके बोलती हूँ कि आज का दिन दिया, आज पूरे दिन भरपूर एनर्जी देना और भरपूर खुश रहो। बस यही मेरा जिंदगी में, वही मैं बता रही हूँ कि शायद जब मेरे को सेकेंड टाइम डायग्नोज हुआ, मैं वाकई में बहुत मतलब आई वाज लाइक डिवास्टेटेड कि ये मेरे को कैसे हो गया, मैं तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी। बट उस दौरान में थोड़ी तकलीफ हुई, पैलेटिव रेडिएशन में मैं आई वाज मतलब टोटली बेड रिडन। मुझे जिंदगी में उम्मीद नहीं थी कि मैं उठ के खड़ी हो पाऊंगी, क्योंकि मेरा एक पैर बिल्कुल सुन्न हो गया था, तो मुझे उसको उठाने में भी तकलीफ होती थी, मतलब उठ नहीं पाता था एक्चुअली। पर धीरे धीरे रिकवर हो गया, और शायद वही मैंने बोला कि ये शायद जिन सबकी, मैं जैसे सबके लिए प्रार्थना और दुआ करती हूँ, उसी तरीके से इन लोगों ने शायद सबने मेरे लिए करी, तो मैं आज उठ करके फिर खड़ी हूँ और इन सबको इतना प्यार कर पा रही हूँ, और इन सबके साथ शेयर कर पा रही हूँ, अपने जीवन के अच्छे पल जी पा रही हूँ। तो यही मैं अपना ध्यान रखती हूँ कि इस तरीके से खुश रहूं, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड ये है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के, जैसे अब मेरे को पेंटिंग करके बहुत, जैसे लोग बोलते हैं योगा करो, मेडिटेशन करो, योगा इज गुड बट मेरे से नहीं होता है, आई एम नॉट ऑफ दैट लाइन। मेरे से चलना आप कितना ही चलवा लो, आई कैन वॉक, ऐसे बहुत रेगुलर, आई एम नॉट एक्सरसाइज फ्रीक ऑल्सो, तो इसलिए मैं थोड़ी ओवरवेट भी हूँ। बट ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीजें मैं कर पाऊँ वो करूँ। तो जैसे लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, तो पेंटिंग, ड्राइंग, एनी आर्ट वर्क इज लाइक मेडिटेशन टू मी। मैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती हूँ, तो मुझे वो करके, मैंने बताया ना, कुछ भी क्रिएटिविटी करके यू फील सो हैप्पी, तो वो हैप्पीनेस मैं अंदर से लाती हूँ, और शायद भगवान की कृपा रहती तो फिर मैं ठीक हूँ ऐसा। Thank you. डिम्पल दी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। मेरा अभी जब सेकंड टाइम डायग्नोस हुआ था, तो वो दिन ऐसा था कि मुझे इतना जल्दी ऐसा फील नहीं हुआ था कि 4 साल में मुझे इतनी जल्दी से कैंसर वापस से आ जाएगा, क्योंकि वही सब मेरा जैसे लंबा टाइम चला था ट्रीटमेंट का। तो आंटी का, मतलब आंटी से मैं इतनी ज्यादा हूँ कि आंटी मुझे डेली फोन लगाती है। एक आंटी का एक ऐसा हो गया नियम सा, जैसे एक माँ कॉल करती है, वही एक मैं बता रही हूँ ना, आंटी माँ है। मतलब आंटी फैमिली फंक्शन में बिजी हो या कोई भी, अभी आंटी घूमने गई थी, दोनों 2 बार गई हैं, 4-4 5-5 दिन के लिए, वहां नेटवर्क नहीं भी मिलेगा तो भी आंटी मुझे कॉल करेंगी कि तू कैसी है, नहीं हो। बस आंटी का ऐसा है। और उस टाइम मैं आपको बता रही हूँ कि जिस टाइम मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं बहुत रोना ड्रामा हो गया था मेरा कि मुझे इतनी जल्दी कैंसर आ गया, फिर से कीमो, आंटी ने मुझे ये कहा था, नेहा आज तू रो ले, जितना मन है उतना रो ले, बस उस रोने के बाद तो जाएगी वॉशरूम में, मुंह धोकर आएगी, भगवान के हाथ जोड़ेगी। और सीरियसली डिम्पल दी, मैंने यही किया था। उसके बाद आंटी को जब मैंने कॉल किया है, बस हमेशा आंटी मुझे हंसाती हैं, और हमेशा, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और मेरे 4 कीमोज हो चुके हैं, 5th मेरा भी 26 को है। तो इस चीज का मैं हमेशा आंटी को, मतलब कि आंटी इतनी हिम्मत देती है और आंटी इतने लोगों को मोटिवेट कर रही है। कभी आंटी ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं मैं अभी बिजी हूँ, आप फोन रख दो। आंटी हमेशा हर एक को अटेंड करती है। Thank you. Wonderful. Yes, Dr. Ruhi, you want to say something? आंटी के लिए बस नहीं, सबसे मतलब कोई सी भी चीज है ना, कोई से भी शब्द जो है ना वो नहीं बोल सकते, बट इतना बोल सकते हैं कि जो भगवत गीता जैसे बोला जाता है ना, हर प्रश्नों का उत्तर जिसके पास है, वैसे ही आंटी मेरे लिए। बस बहुत बड़ा नहीं बोल पाऊंगी, पर ये चीज सत्य है। तो कृष्ण भगवान जैसे हेल्प करते हैं ना, वैसे आंटी है मेरे लिए।
Wow. बहुत it's a true honor and pleasure to host this circle, अनुराधा जी, आप सबके साथ में, because we all can experience that the beauty of that community, and आप लोगों का ग्रुप वहाँ पे है लेकिन वाइब्स यहाँ तक आ रही है, वाइब्स मैं जहाँ यूएस में बैठे वहाँ तक भी जा रही है. So I am glad that we are fortunate that we are able to connect with each other in this manner. And अनुराधा जी, आपसे पूछना था मुझे कि अगर two questions here. One is it only for women who are diagnosed with breast cancer, or men can also get support? या श्योर. अब तो मैं आजकल सभी के लिए, क्योंकि एक ऑपरेशन वाला पार्ट ही डिफरेंट होता है, कोई सा भी कैंसर होगा, आप ओरल कैंसर के हैं, किसी भी कैंसर ब्रेस्ट के हैं, बट द सेकेंड पार्ट मतलब कीमो एंड रेडिएशन इज सेम फॉर एवरीबडी. सो नाउ वी आर ओपन टू एवरीवन. बट हमारे संगीनी नाम ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए है, मतलब तो हम सब इसमें ही, मतलब संगीनी में भी हमारी बहुत सारी विजेताएं जुड़ी हुई हैं ऐसा. बट अभी मैं जनरली कीमोथेरेपी और रेडिएशन के जो भी पेशेंट्स हैं, दूसरी उसके भी, तो ब्रेस्ट कैंसर से ही नहीं है, और मेल्स ऑल्सो कैन, मतलब हम सबको ही वेलकम करते हैं. जो भी इस जर्नी में, मतलब हमको जिसको भी हमारी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. इंदौर के बाहर के लोग भी ब्लेस्ड हैं आपसे बात करने के लिए. या बहुत सारे लोग अभी आपके ग्रुप के थ्रू आई एम जॉइंड टू सो मेनी पीपल. दिल्ली में, मतलब नोएडा में, गुड़गांव में, बहुत सारे पेशेंट्स से हमारी कनेक्टिविटी में नहीं है, आपके ग्रुप की वजह से. पीपल वांट माय नंबर, सो यू विल शेयर माय नंबर प्लीज. इट्स जस्ट अ मिनट, मैं शेयर कर देती हूँ नंबर. और डिम्पल, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो ना, मतलब मैं आपकी स्थिति बहुत अच्छे से इसलिए समझ पाती हूँ कि जैसे जब मैं बीमार थी तो मेरे हस्बैंड की जो सिचुएशन थी, मतलब मैंने बताया ना कि आई फेल्ट कि मेरी वजह से शायद उनको बाईपास के लिए जाना पड़ा या हार्ट की प्रॉब्लम हुई. तो जो केयर गिवर्स होते हैं उनका लाइफ में बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल होता है. और आप जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, सबको इतना हेल्प करना. think it's मैंने बताया ना कि it's a blessing that we are able to do, even छोटा सा भी अगर contribution कर पा रहे हैं तो it's a blessing to be able to do that. And it's a learning जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं. इतने सारे विजेताज हैं यहाँ पे. So in fact I often hear this from people that healing journeys, healing stories, Vijeta stories, I should say, that it inspires many others who are going through the journey. So it's and we are able to do this because of all of your love and support. So want to share my love and gratitude to each one of you. And आज का सेशन काफी हर सेशन यूनिक और स्पेशल होता है. आज का सेशन बहुत ही अच्छा, जॉयफुल था हम सबके लिए. That you are able to share laughter in the middle of what others are going outside. So Anuradha ji, any last few words you would want to share with everybody? Yeah, just a message to all the Vijetas in the group कि मरने से पहले जीना सीख ले. That's it. That's the key to success. मरने की चिंता नहीं करना है, जीना सीख लो. जीवन में खुशी खुशी है. ईश्वर भी तुम्हारा साथ देगा जीने के लिए फिर ऐसा, इसलिए मरने के बारे में सोचना नहीं है. Very true, very true. Yeah, thank you. And Rajendra ji? Yeah. Hello. Just 1 minute. Dimple ji, Anuradha has been smiling and laughing throughout the session. I would like to tell one thing, that cancer survivor is gifted with laughter now, and also lot many positive vibes, and it makes the surrounding so beautiful. So I always say, whatever she has said beautifully, कि मरने से पहले जीना सीख लो. बस वही important message है. Life is beautiful, smile is inexpensive, always keep smile with you. Let other people also smile and go along the way with you. उसके जितने फ्रेंड भी है जो बोल रहे थे ना, सभी all they were smiling and appreciating. So I have no words to express, but really excellent journey, and she has been doing wonderful work. I really congratulate her. Thank you, sir. Thank you, sir.
Right. Somebody wants to share something. Just a minute. Yeah, मैंने आपको request किया है unmute करने के लिए. Thank you Rajendra ji for sharing. Yes, please आप बोलेंगे. आपका नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे. It shows iPhone. Now. Hello. Yeah. Yeah, I am Jyoti. I'm Jyoti Vadhavan from Delhi. Actually, I have been diagnosed with breast cancer in the month of June 2020, and I was completely shattered down. By chance, I don't know who added me, I don't even remember, in your groups. And one day I heard a message of Anuradha ji, and it was such a wonderful message. Before that, I had left all the hopes. I didn't want to even live. I mean, the whole world I used to feel absolutely hopeless. But मैंने हिम्मत करके spoke to Anuradha ji, and she gave me such a positive vibe. I think it was 2 months back, and since then I'm trying, I'm getting all positive vibes from her, and whenever I feel devastated, I keep bringing her up, and she always boosts me morally and mentally. So that is why I'm able to. I'm thinking that I'll be able to cope up with this disease only because of Anuradha ji. I'm really, really thankful to her. I really wish her all the best in her life. I mean, she has acted as a lifeline to me, lifeline, absolutely. And thanks to you also, Dimple. I keep hearing you also. And I think once I spoke to you, maybe 3-4 months back. But Anuradha ji, you are amazing. God really bless you, really bless you. Thank you for all the support and encouragement, rather. Thank you. Thank you. Thank you for sharing this, your experience. Hello, Dimple. Even I want to say, I want to thank Anu Didi. Hello. Yeah. Yes, I am Dr. Kiran Nagpal, and I want to thank Anu Didi. Thank you word वैसे बहुत छोटा है, क्योंकि उनसे मिलने के बाद ही मेरी लाइफ चेंज हुई है. जैसे संगिनी में ज्वाइन किया, during the treatment I didn't met any Sanginis. After treatment, doctor sent me to Anuradha Didi because I had lymphedema. तो उसी के लिए मैं उनके पास गई थी, और फिर मैंने संगिनी ज्वाइन किया, और उसके बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई. तो तब से आज तक वो पॉजिटिविटी कायम है, जस्ट बिकॉज ऑफ हर. थैंक यू सो मच. लव यू. So many ripples of your wonderful work, Anuradha ji, and very happy to see this. Yeah. So thank you, everyone. If anybody wants to share before we close the circle. Okay. Great. So always social support matters a lot, and this entire group is a live example of that, why it matters and how it matters. So thank you for bringing all of us together, is what I would say. I'm deeply humbled today after hearing all of your experiences. आप सबने इतने अपने experiences अच्छे से share किया, and the smile and laughter. We all are going through that journey, and yet we are smiling, yet we are laughing, yet we are joyful. So क्यों नहीं हम disease के साथ में support के साथ में ये सब चीजें कर सकते हैं. We can very well do this, and like we learned in the last healing circle कि pain होता है, but suffering is optional. हमें suffer नहीं करना है. And anybody now, अगर मुझे कोई if somebody reaches out to me for such kind of support, I know now where to go and where to connect. So more love and power to all of you, and we'll close the circle with a minute of silence. Yeah, thank you. Thank you, everyone. And Anuradha ji, मुझे आपसे एक last question पूछना था. If somebody wants to associate it with your cause, or if your NGO, your group needs any kind of support, how can that happen? Yeah, just call me, और उसके बाद में फिर what are the requirements and all we can share. So you can share my contact number. Okay. So कोई मेरे को कॉल कर सकता है, बात कर सकता है, any time of the hour. I'm available 24/7, 365 days, any time you want. Okay. Thank you. Thank you so much, and see you all in the next healing circle Sunday 5 p.m. and take care, stay safe. Yeah. Thank you.
Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Nice meeting you. Thank you.